Welcome to the Maluka Academy. Myself Anil Kumar Skija. So today we will deliver lecture for class 10th and topic is trigonometry. So first question in this is, as we did earlier, the questions based on this. We are given a triangle ABC. D is a point on AB such that AD is equal to BD, and this AB is equal to A and this is B. AC is equal to B. What we want to find, this is theta. We want to find sin theta, cos theta, tangent theta. We want to find this. So as we see that the angle theta is in triangle BCD. So for that we need to find BC and BD. BD we can find, BD will be A by 2. So this BD will be A by 2 since this is half, and we want to find BC and CD. So for BC will be equal to, we can check that BC in triangle अगर हम लेते हैं ABC, तो इसमें BC निकलेगा, क्या निकलेगा, BC will be equal to B square minus A square under root. By Pythagoras we can find this B square minus A square. So this will be BC. Now from here we can find CD in triangle DBC. We have CD is equal to under root of BC square plus BD square. So BC square will be equal to B square minus A square, and BD square is A square by 4. So this will be is equal to 1 by 2 under root 4B square minus 3A square. So this will be 1 by 2 under root 4B square minus 3A square. So now we can write all the ratios. That is sin theta will be equal to, what will be sin theta? Perpendicular A by 2 upon hypotenuse, that is 1 by 2 under root 4B square minus 3A square. So this cancels out, 1 by 2. So this will be in the denominator, four B square minus 3A square. So this cancels out, A upon under root 4B square minus 3A square. Then what will be cos theta? Base. Base is this, under root B square minus A square upon 4B square minus 3A square upon 2. So this comes out to be, then we want to find tangent theta. Tangent theta will be equal to, divide these two, sin theta upon cos theta. So you will get A upon 2 under root B square minus A square. So this will get you the various values. Now next we move on to the new part of this topic. This was just the revision what we did yesterday. Now we have got T ratios of some specific angles. T ratios of some specific angles. So कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिसको हम नोटिफाई करते हैं, तो वो एंगल्स क्या हैं उसको हम निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास 0 डिग्री है एक, तो फिर 30 डिग्री है,
फिर 45, 45, देन 60 एंड देन 90। हमने इन सभी के लिए लिखना है क्या साइन थीटा होता है, क्या कॉस थीटा है, क्या टेंजेंट है, फिर उसके रेसिप्रोकल। सो इसमें हम साइन का अगर लिख लें दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो साइन थीटा के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम वैल्यूज़ देखेंगे कैसे जनरेट करनी है। वंस वी कैन नॉट रिमेंबर दीज वैल्यूज़, वी कैन आल्सो जनरेट दीज वैल्यूज़ एट आवर ओन। तो इसको हम कैसे करते हैं, साइन के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसको लिखते हैं। ये हमारे पास कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4। सो 0 से शुरू कर लो, 0, 1, 2, 3, 4। अब 4 आया, 4 से डिवाइड कर लो इसको, फिर इसका अंडर रूट ले लेना है हमने। सो ये हमारी साइन की वैल्यूज हो जाएंगी। सो इन वैल्यूज को हम ऐसे लिख सकते हैं, इनको सॉल्व करके 0.4 क्या आएगा, 0 ही आएगा। सो ये हो गया हमारा साइन थीटा, 0 हो गया, ये 1/2 हो गया, 1/√2 हो गया, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ओके, अब कॉस थीटा के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, इसको रिवर्स कर देना है। सो साइन थीटा की वैल्यू हम दे सकते हैं, ये इंक्रीज कर रहा है 0, फिर हाफ हो गया 1/√2, इससे भी ज़्यादा है, ये इससे भी ज़्यादा है, ये उससे भी ज़्यादा है। सो ये वैल्यूज इंक्रीज कर रही है। साइन थीटा जो 0 से 90 तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगी वैल्यू। अब जब कॉस पे आते हैं तो उल्ट कर देते हैं, बड़ी वैल्यू से शुरू करते हैं और नीचे तक जाते हैं। यहाँ पे हम 0 से 1 तक गए हैं, अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके 0 तक जाएंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, √3/2। उसी तरह से ये वैल्यू यहीं पे रह जाएगी और ये 1/2, ये 0 आ जाएगा। ये ऐसा क्यों किया गया, ये आपको नेक्स्ट हायर क्लासेस में पता चलेगा। बिकॉज ऑफ दीज आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कॉस और साइन की वैल्यूज रिवर्स हो जाती है। अब आगे है टेंजेंट। टेंजेंट थीटा में क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। 0.1 0 आ गया, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, ये 1 आ गई वैल्यू, ये √3 आ गई, ये 1/0, इसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है। 1/0 इज अनडिफाइंड वैल्यू, सो दिस वैल्यू इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब बाकी जो वैल्यूज है वो बहुत सिंपल है। अब इसको रेसिप्रोकली करना है। जैसे कोसेकेंट का करना है, कोसेकेंट में क्या करेंगे, साइन को उल्टा देना है, 1/sin हो जाएगा ना। सो 1/0 क्या है, ये भी नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ये 2 आ गया, ये √2 आ गया, ये 2/√3 आ गया, ये 1 आ जाएगा। अब सीकेंट, इसके दो तरीके हैं वैल्यूज लिखने के। एक तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हम नॉट डिफाइंड से 1 तक गए हैं कोसेकेंट में, 1 से नॉट डिफाइंड तक यहाँ आ जाएगा, या इसको उल्ट कर दो, रेसिप्रोकल ले लो कॉस का, या इसको कर सकते हैं। सो इसको सीधा ही कर ले, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, √2 आ गया, ये 2 आ गया, ये नॉट डिफाइंड आ गया। सो दीज आर आल्सो कम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज, दीज आर आल्सो कम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज। ऐसे इसी तरह से टेंजेंट और कॉट भी कम्प्लीमेंट्री है। इसमें 0 टू नॉट डिफाइंड तक जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड से 0 तक जाएगा, √3 1, 1/√3, और ये क्या हो जाएगा, 0। सो नाउ वी कैन लुक एट द टेबल एंड वी कैन get some of the observations from this table which I have explained you earlier. So first of all is value of sine will remain between 0 and 1. साइन और कॉस की वैल्यू 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 0 तक, यहाँ पे क्या जा रही है, ये 0 से लेके 1 तक जा रही है, ये 1 से लेके 0 तक। मीन्स इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, 1 तक जा सकती है। दैट इज साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगी। बट टेंजेंट और कॉट में क्या है, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ये टेंजेंट की वैल्यू 90 पे नॉट डिफाइंड है और कॉट की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइंड है। सो दिस कैन नॉट बी डिफाइंड।
So with these values we will solve some questions based upon these. So before that I will rub this part. देन क्वेश्चन है, इसमें हम देख सकते हैं हमने इसकी वैल्यू लिखनी है sin 60 cos 30, फाइंड sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30. सो इसकी वैल्यू निकालनी है हमने. सो sin 60 क्या आएगा? sin 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू भी √3/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू भी 1/2 है. क्या हो जाएगा? 3/4 प्लस 1/4, ये 1 आ जाएगा. इसी तरह से हमने 60 45 के लिए निकालनी है. ये फर्स्ट पार्ट था इसका. सेकंड पार्ट में क्या है? sin 60 cos 45 cos 60 sin 45. So similarly we can substitute the values here. So what will be sin 60? This is √3/2, 1/√2, 1/2, 1/√2. So this will become √3/2√2 plus 1/2√2. This comes out to be √3 plus 1/2√2. So this will get you the result. Then next we want to find the value of question third is find tangent 60 degree cosecant square 45 degree plus secant square 60 degree or tangent 45 degree. So tangent 60 is √3. We can check it from there. Cosecant square 45 is 2. Cosecant 45 is √2. Square will be 2. Secant square 60. This will be 4. This is 1. So this is 2 √3 plus 4. So this will be the result. √3 plus 4. The next is first part, this is second part. 4 cot square 45 minus secant square 60 plus sin square 60 plus cos square 90. So simply we have to substitute the values. Cot 45 is 1, so this is 4 into 1 square minus secant 60, again 2, secant 60 is 2 square, that is 4, and sin square 60 √3/2 whole square plus cos 90 is 0. So this will become 4 minus 4 plus 3/4. This cancels out, answer comes out to be 3/4. So this will be the result. The next is, but before that we will rub that part. Question fourth in this is, so इसमें हमने शो करना है to show that
क्या करना है इसमें शो, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 इज इक्वल टू 6। ये हमने शो करना है। सो जस्ट फिल द वैल्यूज, जो भी हमने देखा है इसमें वैल्यूज फिल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये, 2 इंटू 1/2 बन जाएगा ये, प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 √3 स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 6 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन 45 इज 1/√2 होल स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, tangent 30 is 1/√, is whole square. So this will be 2 1/2 plus 3 minus 6 into 1/2 minus 1/3. So this will be your 7/2, 2 into 7/2 minus 6 into, this will be 3 minus 2 upon 6. So this will be 7 minus 6 into 1/6. This comes out to be 7 minus 1. So result is 6. So this is what want to show. This is the first part. Then second part in this is 2 cos 60 raised to power 4 60 degree raised to power 4 plus sin 30 degree raised to power 4 minus tangent square 60 degree plus cot square 45 plus 3 secant square 30 degree equal to 1/4। ये हमने शो करना है। तो इसमें भी सेम वैल्यूज ले लेनी है। क्या आएगा, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, सो 2 इंटू cos 60 इज 1/2 रेज टू पावर 4 प्लस साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 रेज टू पावर 4 होगी माइनस टेंजेंट 60 √3 स्क्वायर प्लस cot 45 1 स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस 3 cos 30 is √3/2, so this will be 2 upon √3 whole square। so इसको हमने सॉल्व करना है। 2 इंटू 1/16 माइनस 3 + 1 प्लस 3 इंटू 4/3। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2/16 माइनस 4, ये कट जाएगा प्लस 4, ये कट गया। सो दिस विल बी 4/16 कैंसिल करके क्या आ जाएगा 1/4। सो ये हमारा रिजल्ट जो हमने प्रूव करना था ये आ गया। सो देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, बट बिफोर दैट वी रब दिस पार्ट।
Next question is, find the value of x from the following equation. So this is, I think, question number 5th. Find x. तो इसमें फर्स्ट पार्ट जो है, टेंजेंट 3x इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30. सेकेंड पार्ट में क्या करना है, इसमें कॉस x इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री. सो पहले हम इसको करते हैं. सो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट 3x इज इक्वल टू साइन 45 1 बाई रूट टू 1 बाई रूट टू 1 बाई 2. सो दिस विल बी 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2. दिस इज इक्वल टू 1. सो टेंजेंट 3x इज इक्वल टू 1. सो अब टेंजेंट में किसकी वैल्यू 1 होती है? सो वी हैव टू चेक फॉर ऑल द वैल्यूज फॉर विच, एंड वी फाइंड दैट टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1. सो कंपेयरिंग द बोथ द साइड, 3x विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, x विल बी इक्वल टू 15 डिग्री. सो दिस विल बी द आंसर. नाउ फॉर सेकेंड, cos x इज इक्वल टू cos 60 is 1 by 2, cos 30 is under root 3 by 2 plus sin 60 is under root 3 by 2, and this your sin 30 is 1 by 2. So this will become root 3 by 4 plus root 3 by 4. So cos x is equal to root 3 by 2 root 3 by 4, which will be under root 3 by 2. This cancels with 2. And this is cos 60 degree, cos 30 degree. So value we can see that x will be equal to 30 degree. If their cos are equal, then angles are also equal. The next sixth question is, when x is equal to 30 degree, we have to verify तो क्या वेरीफाई करना है हमने इसमें, टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x. और सेकेंडली हमने क्या करना है, साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2. सो दिस वी वांट टू शो. सो हमने क्या करना है, सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, x की जगह 30 डिग्री, और ये प्रूव करनी दोनों साइड. सो व्हेन x इज इक्वल टू 30, क्या आ जाएगा, ये टेंजेंट 2 इंटू 30 डिग्री आ गया, 2 टेंजेंट 30 डिग्री ऊपर आ गया, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये हो जाएगा टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू टेंजेंट 30 क्या है, 1 बाई अंडर रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 3. सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 3 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये कितना आ जाएगा 2 बाई 3, ये कट गया इससे, 3 अपॉन अंडर रूट 3 आ गया विच इज़ अंडर रूट 3. सो दोनों साइडों पे सेम आ गया. सो इसलिए ये रिलेशन वेरीफाई हो गया. सेकंड में इसमें क्या है, सॉल्यूशन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 60 डिग्री अपॉन 2. ये 1 बाई 2 हो गया. सो ये होएगा 1 माइनस 1 बाई 2 अपॉन 2. सो ये कितना हो गया, 1 बाई 2 इंटू 2 आ जाएगा विच इज़ 1 बाई 4 का अंडर रूट 1 बाई 2 आ जाएगा. सो दिस विल बी द same, both sides are same, hence the result is verified. Now we move to the next part. Then
first of all I rub this part. तो इसमें हमने क्या पता करना है, थीटा फाइंड करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. क्वेश्चन 7th, फाइंड थीटा इन फॉलोइंग. हमें क्या दिया है, 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा किसके बराबर आ जाएगा, √3/2. साइन में ये किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की. सो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. सो ये हमारा आ गया. सो यहाँ से क्या है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 किसके लिए, 1/2 हो गया ये. सो 1/2 किसके लिए होती है इसकी वैल्यू, cos ऑफ 60 एंड 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, थीटा विल बी इक्वल टू 20 डिग्री. सो ये हमारा आ जाएगा. देन 8th क्वेश्चन नेक्स्ट है. सो अब हमें दिया है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. थीटा इज एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. फाइंड वैल्यू ऑफ, तो इसमें हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1. 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा +1. सो ये हमने पता करना है इसमें. तो हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन गिवन इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो डिवाइड कर दो दोनों साइड पे, डिवाइड बाय कॉस थीटा वी गेट. तो क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, तो वी विल गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. ये हो गया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1. इट मीन्स ये टेंजेंट 45 के बराबर होता है. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हम निकाल लेंगे टू फाइंड 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा +1. ये हो गया 2 इंटू टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री +1. सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 +1. सो ये आ जाएगा 3 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 5/2. ये आंसर आ जाएगा इसका हमारा. टू प्लस 1/2 -1.
Okay. Now actually we can also find, if we want to find the value of, find 2 tan square theta plus sin square theta minus 1. So this will be 2 tangent square 45 degree, sin square 45 degree minus 1. So 2 into 1 plus 1 by 2 minus 1. So this will be 2 plus 1 by 2 minus 1, 5 by 2 minus 1, this comes out to be 3 by 2. So we can find both the values, either this or this. The result in both the cases will be different. So this is regarding the T ratios of standard angles. So we will continue with the same in the next lecture and go through your part which we did today. So do this part thoroughly. In case of any problem, just contact me. Thank you very much.